سے 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع وادی کیلاش ایک دلنشیں وادی ہے۔ یہاں کی خوبصورتی، ثقافت اور تہواروں کے رنگ پاکستان کے دیگر علاقوں سے خاصے الگ ہیں۔ وادی کے باسی اپنی قدیم روایات کو تا قیامت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ہمارے کلچر تو خطرے میں ہی ہے نا، لیکن ہمارے اوپر سب کہتے ہیں کہ کیلاش لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا، یہ مسلمان جو ہے جنت میں جائے گا، اور ہمارے یہ بندے جو چراگاہ میں جاتے ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ اس لیے ہم بہت ڈرتے ہیں کہ کیلاش لوگوں کو ہم قتل کریں گے اور مسلمان بھائیوں کو نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر کے بھی ہمارے مذہب ختم ہو جائے گا۔ سیاحوں کی نظریں اس علاقے کی خوبصورتی اور لوگوں کا حسن دیکھ کر تو واپس لوٹ جاتی ہیں، مگر وہ مقامی لوگوں کی فکروں، درد و جذبات سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ہمارے 5 روزہ سفر میں جہاں ہم نے وادی کیلاش کی خوبصورتی کو سمیٹا، وہیں ہمیں وہاں کے باسیوں کی فکریں اور جذبات کو قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع میسر آیا۔ یہاں پر کیلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے 1800 افراد آباد ہیں۔ بمبورت میں شفاف پانی کے بہتے دریا کے اطراف میں دور تک پھیلے مکئی اور گندم کے سرسبز کھیتوں، ناشپاتی، خوبانی، اخروٹ اور سیب کے پھلدار درختوں سے سجا نظارہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فضا میں ناشپاتی اور سیبوں کی خوشبو نے پوری وادی کو مہکایا ہوا تھا۔ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، جگہ پرسکون بھی ہے کہ ابھی تک بہت ہی یہاں کا جو ہے نا، جو آب و ہوا جو ہو بہترین، میرے خیال میں پاکستان کا ایک جنت نظیر ٹکڑا ہے یہ، کہ ادھر دیکھو شور نہیں ہے، امن ہے، پانی یہاں کا بہت اچھا ہے، ہوا بہت اچھی ہے۔ جگہ جگہ پر نظر آتی اپنی ثقافتی لباس میں ملبوس کیلاش کی حسین دوشیزاؤں کی وجہ سے بمبورت کے نظاروں میں مزید رنگ بکھر جاتے ہیں۔ کیلاش قبیلے کی آبادی 4000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ اس قبیلے کے لوگ کیلاش کی 3 وادیوں میں مقیم ہیں، لیکن ان کی اکثریت بمبورت میں رہتی ہے۔ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ اس نام کی وجہ مقامی لباس کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں کی خواتین سیاہ لمبے فراق نما کرتے پہنتی ہیں، جس پر ہاتھ سے بڑے خوبصورت رنگا رنگ ڈیزائن کاڑھے جاتے ہیں۔ سر کو ڈھانپنے والی ٹوپی بھی اس لباس کا ایک حصہ ہے۔ یہ پیٹھ کی طرف سے آ کر سر کے اوپری حصے پر گولائی میں پھیل جاتی ہے۔ لباس کے اس ٹوپی نما حصے پر درجنوں کی تعداد میں سپیاں، گھونگے، سکے، بٹن اور رنگین پر اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کو نہایت خوبصورتی سے ٹانکا جاتا ہے۔ کیلاش میں مذہبی رسومات سے لے کر سالانہ 3 مشہور تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں شامل پہلا تہوار چلم جوشی 13 مئی سے 17 مئی تک۔ جو جوشی جو ہے، اس کا مطلب یہ سارے یہ گندم، مکئی، ان کو بوتے، پھل یہ اگتے ہیں، مال مویشی، یہ سارے یہ سٹارٹنگ وہ دولت دینے کے لیے وہ آتے ہیں نا، پھر ان کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے لیے کہ تو نے ہمیں اس طرح بچا کے، پھر یہ موسم سٹارٹ ہوا، پھر یہاں اور تازگی دے، برکت دے، ان کی وہ جو پھل میوے اور یہ مکئی کے بیج ان کو تازہ اور وہ کر کے عطا فرمائے۔ دوسرا اوچاؤ نامی تہوار 21 سے 23 اگست میں ہوتے، اس کو کہتے ہیں ہم اچو۔ وہ بھی یہ جو ہے فل تیار ہوتے پھل، اور یہ مکئی گندم تیار کرتے ہیں سٹور کرنے کے لیے، پھر بکریوں کی وہ رزق، دودھ پنیر منیر، ادھر ہم پھر دعا کی وہ ہے تو نے اچھی طرح ہمارے لیے تیار کیے یہ رزق، پھل پھول، یہ مکئی گندم وغیرہ۔
जबकि तीसरा चाओ मॉस नामी त्यौहार 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मनाया जाता है। इन त्योहारों में बड़ी तादाद में बकरों और बैलों की कुर्बानी दी जाती है। कलाशी त्यौहार चलम जोशी को पाकिस्तान के एक सबसे रंगारंग त्यौहार की हैसियत में ख़ास शोहरत हासिल है। यही वजह है कि इस त्यौहार को देखने हर साल हज़ारों सयाह वादी कैलाश का रुख करते हैं। ये कहना भी गलत ना होगा कि ये त्यौहार ही वादी कैलाश की रोज़मर्रा ज़िंदगी और वहाँ के अनोखे रहन सहन को दुनिया भर में शोहरत बख्शने का एक बड़ा सबब है। कुदरती नज़ारों से भरपूर वादी में ओचाओ मेला अगस्त में मनाया जाता है। इस 3 रोज़ा मेले में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों समेत मुकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। इस मेला पर कैलाशी ख़वातीन और लड़कियां अपने घरों को खूबसूरती से सजाती हैं। ख़वातीन अपना रवायती लिबास ज़ेबतन करती हैं, सरों पर मखसूस टोपियां और गले में रंग बिरंगे हार पहनकर दायरे की शक्ल में रक्स करती हैं। मेले के पहले रोज़ नौजवान लड़के लड़कियां रंबूर के कम्युनिटी हॉल में जमा होकर गीत गाते और ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। कैलाश बरादरी के लोग मकई की रोटी, लस्सी और पनीर तैयार करके मुकामी अफराद और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों में तकसीम करते हैं। आबादी से बाहर एक बुलंद मुकाम पर दुआएं मांगी जाती हैं। वादी कैलाश का सालाना 15 रोज़ा मजहबी त्यौहार चाओ मॉस गुज़रे साल को अलविदा जबकि नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मनाया जाता है। और इस त्यौहार में कई नए जोड़े शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इस त्यौहार में पसंद की शादी का इजहार भी किया जाता है। देखो ना भाई, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है ना, मैंने मास्टर की हुई, मैं एक क्या कहते अनपढ़ से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, ये सोच ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे अनपढ़ है, कोई भी नहीं है एजुकेटेड है जिससे आप लाइफ पार्टनर बना सको। त्यौहार के आखिरी रोज़ सुबह सवेरे मजहबी रस्म अदा की जाती है, जिसके बाद गांव के पहाड़ी इलाके में लोमड़ी की तलाश की जाती है, जो इस त्यौहार का नहायत ही दिलचस्प हिस्सा है। इस मौका पर कैलाश के मुख्तलिफ गाँव से आए मर्दों ख़वातीन में गाने का दिलचस्प मुकाबला भी होता है। इन अमारात को देखने के बाद हम अपनी अगली मंजिल बम्बूर्द के खूबसूरत गांव की तरफ बढ़ गए। हर घर के अंदर सर्दी के मौसमी खुश्क मेवा जात, आटा और मुकामी तौर पर तैयार करदा शराब का स्टॉक महफूज रखने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का स्टोर मौजूद है। शराब बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन और ख़वातीन के लिबास के लिए दरकार कशीदाकारी का पूरा सामान भी हर घर की जीनत होता है। घरों के बाद हमने कम्युनिटी सेंटर का रुख किया। कैलाशी कबीले की तीनों वादियों में कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। इस कम्युनिटी हॉल के अंदर मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। शादी और पैदाइश की रसूमात की तरह फौतगी से जुड़ी रवायात भी हैरान कुन और बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। कैलाशी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स जब फौत हो जाता है तो कबीले की तमाम वादियों से हज़ारों की तादाद में मर्द और जन इकट्ठा होते हैं। मैयत को पहले दिन कम्युनिटी हॉल के अंदर रखा जाता है। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए आए हुए मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं। इसके अलावा शराब का इंतज़ाम भी किया जाता है। यहाँ मौत शौक की बजाय खुशी का मौका होता है। जश्न में शराब, रक्स और हवाई फायरिंग होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट रखे जाते हैं और सिगरेट रखी जाती है। साथ ही साथ मैयत के इर्द गिर्द रक्स भी किया जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। बम्बूर्द कस्बे के दरमियान गुजरते दरिया की दूसरी तरफ इनका एक कब्रिस्तान है। जब हम इस कदीम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो कब्रिस्तान में एक तरफ डब्बों में हड्डियां पड़ी हुई नज़र आ रही थीं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी कब्रें नज़र आईं जिनके ऊपर चारपाई उल्टी पड़ी हुई थी। ये लोग पहले अपने मुर्दों को दफन करने के बजाय लकड़ी के डब्बे में उनकी ज़ाती अशिया के साथ उस जगह पर छोड़ देते थे। लाश वहीं गलती सड़ती
बदबू पैदा करती और फिर इसका वजूद ही ख़त्म हो जाता। इस तरह पूरे इलाके में बदबू फैला करती थी, जबकि मुख्तलिफ बीमारियां भी फूट पड़ती। गुज़रे वक्तों में गैर मुकामी नौजवान मुर्दों के साथ रखे गए सामान को चोरी कर लिया करते थे। चुनाचे इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुकामी लोगों ने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरी रसूमात के कदीम रवायती तरीक़ाकार के आसार आज भी यहाँ मौजूद हैं। आम लोगों की कब्रों पर स्याह, जबकि मुअज़्ज़ज़ीन की कब्रों पर सुर्ख झंडा लगाया जाता है, जबकि मैयत को जिस चरपाई में कब्रिस्तान लाया जाता है उसे कब्र पर उल्टा रख दिया जाता है। हम जब मरते भी ना तो अल्लाह के नाम पे दफन करते, ये नहीं कि हाँ डांस करते, ये बात है कि वो तो एक होता है मातम से डांस होती है ना, ये जो ढोल बजा के जो शोर बजाते इस तरह नहीं होती, वो आराम स्लो डांस करते, ढोल बजाते लेकिन वो आवाज़ भी स्लो होती। यहाँ वाक़या एक मुकाम को बशाली कहा जाता है, यानी ख़वातीन के लिए मखसूस जगह, और इसमें आर्जी क़याम करने वाली ख़वातीन को बशालियन पुकारा जाता है। दरअसल कैलाश में ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम के दौरान अपना घर छोड़कर इस जगह आ जाती हैं, क्योंकि इन्हें इस हालत में नापाक तस्वर किया जाता है। बशाली को पुरगाता यानी नापाक जगह भी पुकारा जाता है, जबकि बाकी गांव ओनजस्टा यानी पाक कहलाता है। बशाली की दीवार को लोग छूते तक नहीं हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ ही औरत घर जाने से पहले अपने पहले 10 दिन बशाली में गुजारती है, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले पहल तो हामला औरत को गांव से बाहर निकलकर बशाली पहुंचना होता था, लेकिन अब वो डिस्पेंसरी या शहर भी चली जाती हैं। बशाली से वापसी पर ख़वातीन को पाक किया जाता है, और ख़वातीन को पाक करने का उनका अपना एक रवायती तरीका है, जिसमें कबीले का एक बुजुर्ग आग का इस्तेमाल करता है। इसी तरह जब लड़की बालग हो जाती है तो फिर इसे घर में बाल धोने की भी इजाज़त नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं, लेकिन सर नहीं धो सकती। बशाली के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहाँ मौजूद एक जगह को गाह कहते हैं, जहाँ औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। ख़वातीन के लिए खाना घर के बच्चे लाते हैं, और खाना खाने के लिए बशाली के अंदर मौजूद बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कैलाशी रवायात के मुताबिक अगर किसी खातून की बशाली में मौत वाक़या हो जाए तो उसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मुकाम पर नहीं लाई जा सकती, यहाँ तक कि दोबारा घर की तरफ या गाँव में भी नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि उसे बशाली के करीब ही नीचे वादी के किसी मुकाम पर 3 दिन तक रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मुकामी आबादी में से अगर कोई बशाली के हदूद की खिलाफ वर्जी करे या उसकी दीवार छू ले या कोई बच्चा अपनी माँ से गांव की तरफ चला जाए तो फिर इस मुकाम पर बकरे की कुर्बानी कर दी जाती है, जिसके बाद ही इस जगह को फिर से पाक तस्वर किया जाता है। कम्युनिटी स्कूल में नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक मुकामी ज़ुबान मीरक में तालीम दी जाती है, जो कि यहाँ की सकाफ़त को ज़िंदा रखने की एक सही है। कैलाशी सकाफ़त में ख़वातीन को मुनफरिद मुकाम हासिल है। घर के तमाम फैसले ख़वातीन ही करती हैं। घर के कामकाज और मवेशियों की देखभाल से काश्तकारी तक हर किस्म का हिसाब किताब सब ख़वातीन की ही ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में कमतर भी समझा जाता है। यहाँ की सकाफ़त ख़वातीन पर कामकाज और ज़िम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ डालती है। पहले तो ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब बच्चियों की तालीम पर खासी तवज्जो दी जा रही है और आज यहाँ आला तालीम याफ्ता ख़वातीन पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे जो मर्द लोग हैं ना भाई, सच बताओ वो बेकार है, फजूल है, वो कुछ नहीं करते। वो सारे मतलब दिन में वहाँ पे चौक में उधर खड़े रहते हैं, दिन में चलो पढ़ाई नहीं करते, छोड़ो इन बातों को, पढ़ाई नहीं कर सकते या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कारोबार तो कर सकते हैं ना, कुछ तो कर सकते हैं ना, खाने के लिए कुछ तो मतलब, लेकिन वो नहीं है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ की जो ख़वातीन है ना, औरतें, वो मतलब पढ़ी लिखी ज़्यादा है और पढ़ने की कोशिश भी कर रही है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाए, लेकिन मर्दों में इस तरह नहीं है।
बम्बोर्द वादी के खूबसूरत मनाजर को अपने कैमरों में महफूज करने के बाद हमारी अगली मंजिल वादी रंपोर थी। रंपोर बम्बोर्द से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वादी रंपोर में कैलाशी आबादी 800 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ बम्बोर्द की निस्बत ज़्यादा हरियाली पाई जाती है और लोग भी इंतहाई मिलनसार हैं। पूरी वादी फलदार दरख्तों से भरी हुई है। ख़वातीन घरों के बाहर कपड़ों पर कशीदाकारी और खूबसूरत टोपियों की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन खेतों में अपने मर्दों का हाथ बटाते नज़र आती हैं। यहाँ हम एक मुकामी शख्स की दावत पर उनके घर चले आए। घर के तमाम अफराद ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया और चाय पराठों के साथ हमारी तवाज़े की गई, जबकि हमारे सामने शराब के 2 गिलास भी रखे गए, जिसे हमने पीने से इनकार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तीसरी वादी बरेर है, जिसका एक रास्ता अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान की तरफ और दूसरा पहाड़ी रास्ता बम्बोर्द की तरफ निकलता है। यहाँ पर कैलाश कबीला के तकरीबन 1400 लोग आबाद हैं। ये वादी बम्बोर्द और रंपोर से ज़्यादा पसमानदा और अलग थलग है, लेकिन लोग दीगर वादियों के बासियों की तरह मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। कैलाश के बारे में ये तासुर गलत और मन घड़त है कि यहाँ पर ख़वातीन को फ़रोख्त किया जाता है। जो लोग आते हैं ना वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कैलाश लड़कियाँ मिलते हैं, यहाँ पे शराब मिलते हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो। जितने भी लोग होते हैं ना, कसम से भाई मैंने यही सुना है। ये लोग उनसे, ये टूरिज्म वाले ये क्यों नहीं कहते कि यार ये सोच बिल्कुल नहीं है। अगर जिधर भी जाओ ना, कोई भी किसी के लिए बिके हुए नहीं है, या कोई जो भी चाहे जो भी हो ना, गरीब हो, उनकी इज्जत उनके लिए प्यारी है। मेरी इज्जत मेरे लिए सही है ना। मैं इस तरह, हाँ मैं ओपन कर सकती हूँ, मेरे पास दुपट्टा नहीं है। दुपट्टे पे इंसान का नीयत सही होना चाहिए, दुपट्टे से कुछ नहीं होता ना। जो लोग ऐसा जहन लेके आते हैं वो अक्सर हमारे मुसलमान भाई ही होते हैं। वो कहते हैं चलो वो काफिरिस्तान है, वहाँ जाएंगे तो काफिर हैं, वो सारे नंगे ही फिर रहे होंगे, उधर हर एक चीज़ की आज़ादी होगी। ये काफिर अपनी जगह है, मगर इस तरह बेहया नहीं है कि लोग हयादार हैं। इनमें से कोई जिस्म फरोशी का कारोबार आज तक हमने नहीं सुना है कि किसी को ऐसा करते। तो उसी जहन के टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो यहाँ आके बहुत खफा होते हैं। फिर मीडिया को भी वो गालियाँ देते हैं कि भाई इधर क्या है, इधर क्या है। यहाँ के मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह किसी का मरना भी शादमानी का मौका है। उनके मज़हब के मुताबिक शादी और तदफीन की रवायात की तकमील पर 15 से 20 लाख का खर्चा हो जाता है। कैलाश कबीले की मजहबी रवायात के मुताबिक शादी और पैदाइश के मौका पर ना सिर्फ बड़ी तादाद में जानवरों को कुर्बान करके पूरे कबीले की दावत की जाती है, बल्कि अजीज़ और अकारब को भी तोहफे तहाइफ देना लाजमी होते हैं। शादी के लिए लड़का लड़की को एक दूसरे का पसंद आना लाजमी है। यहाँ लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है, जिसके बाद लड़के के वालिद मजहबी रवायात के मुताबिक लड़की के वालिदैन और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन को ये खबर देते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक करते हैं कि आया वो अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ आई है या फिर ज़बरदस्ती इसको यहाँ लाया गया है। लड़की जब बताती है कि वो अपनी मर्जी खुशी के साथ लड़के के साथ आई तो रिश्ता हो जाता है, जिसके बाद इन मेहमानों के लिए दावत का एहतमाम किया जाता है। इस दावत में लड़की वाले बतौर ख़ास मेहमान शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। यहाँ दोनों ख़ानदानों के माबैन तहाइफ के तबादले और दावत का ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक जारी रहता है। यहाँ अगर शादीशुदा औरत को कोई दूसरा मर्द पसंद आ जाए तो वो अपने पहले शोहर को छोड़कर दूसरे मर्द से शादी कर सकती है और इस पर पहले शोहर को एतराज़ भी नहीं होता। कैलाशी रवायात के मुताबिक पहले बच्चे की पैदाइश के मौका पर लड़की वालों की तरफ से एक पुरवक्कार दावत का एहतमाम किया जाता है, लेकिन इसके अखराजात लड़के वालों को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। दावत के इख्तिताम पर लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को नकदी की सूरत में तहाइफ भी देना लाजिम होते हैं। इस दावत में कई बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। कैलाश में शादी हो, बच्चे की पैदाइश या मौत, हर मौका पर खुशी का इजहार किया जाता है और इस खुशी का इजहार एक ख़ास किस्म का ढोल बजाकर किया जाता है। इस ढोल को उनका कौमी साज भी करार दिया जाता है। हमारे मज़हब में ढोल इतनी ज़रूरी है
जितनी हमारी मज़हब, पहले हम दुआ सजदा खुदा के लिए करके फिर ढोल के रियाते वो गाने जो होते वो गाकर फिर ढोल तरनम के साथ बजाए जाते हैं। ढोल के बगैर वो अधूरी है। वादी कैलाश के बासियों को ये शिकवा है कि कैलाश कबीले की तीनों वादियों में हुकूमती तवज्जो ना होने के बराबर है। कैलाश को चित्राल से मिलाने वाली तीनों सड़कें दुश्वार गुजार और कच्ची हैं, जिसके बाद सयाहों को यहाँ तक आने में काफ़ी दुश्वारी होती है। इस वक्त कैलाश कबीला अपनी सकाफत की बका की जंग लड़ रहा है। मजहबी रसूमात पर आने वाले अखराजात को पूरा करना उनके लिए एक चैलेंज है। उनका कहना है कि हमारे त्योहारों और रसूमात में बड़ी तादाद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। यूँ समझिए कि एक रस्म पर कम से कम 7 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इन रसूमात को पूरा करने के लिए एक कैलाशी ख़ानदान पूरा साल मेहनत करता है और जानवरों की देखभाल से लेकर खुश्क मेवा जात को जमा करने तक एक कठिन मरहले से गुजरता है। ऐसी सूरत हाल में हमारे आगे 2 ही ऑप्शन होती हैं, या तो अखराजात बर्दाश्त किए जाएं या फिर अपनी मुनफरिद सकाफत को तारीख के अवराक में गुम होने दें। दूसरी सूरत के लिए यहाँ पर कोई एक शख्स भी राज़ी नहीं।